Hello everyone. So this is the next part of Maths Chapter 3 matrices, and this topic in this particular part we are going to cover is transpose of a matrix. So the matrix obtained from any given matrix by interchanging its rows and columns is called a transpose of that original matrix, and it is denoted by three symbols. Those three symbols are A dash, a raised to small t, or a raised to capital T. That is the meaning of A transpose. So what is a transpose? So basically what you do in transpose is, suppose you have got an original matrix like this, right? Just look at the first row. 1, 2, 3, 4. Just look at the first column as well. 1, 2, 3. So what we are going to do is we are going to convert the first row into first column and first column into first row. So as you can see, the first row, which was 1, 2, 3, has now become first. First column, which was 1, 2, 3, has now become first row 1, 2, 3. And the first row 1, 2, 3, 4 over here has become first column in its transpose. So each column gets converted into row. If it is second column, it will become second row. If it is second row, it will become second column, right? So there are respective swaps between the rows and the columns. So that is transpose. The definition is given here, but we are not going to discuss the definition, technical definitions as of now. There is no application for it. Let's directly go to some theorems. Okay, the first theorem says that if A dash if A dash and B dash are the transpose of A and B, then A transposes A. So if you take A transpose and again transpose it, you will get A, right? A plus B, the whole transpose is A transpose plus B transpose, but A and B should be of the same order, so their addition must be possible. And K multiplied by A, the whole transpose, is equal to K multiplied by A transpose, K being any scalar, right? So 1, 2, 3, there are three laws over here. Okay, these were the three basic theorem. There is one reversal law also. Reversal law states that A multiplied by B, the whole transpose, is equal to B transpose into A transpose. But for that, A and B must be compatible for multiplication. So very, very important law. A multiplied by B, A product B, the whole transpose is equal to B transpose multiplied by A transpose. Very important. Please note these laws down. Please note it down. Okay, pause the video, note it down. I hope you have noted it. Okay, next is symmetric and skew symmetric matrices. What's a symmetric matrix? A square matrix Aij is said to be symmetric if the I, jth element is the same as j, ith element. So, symmetric matrix is such that if you reverse the column number and the row number for a particular element, you get the same element. The examples of symmetric matrices are given over here. Right? Here, notice one thing. Suppose if I'm taking the first example, that is 2, 4, 4, 5. Can you tell me what is A11? A11 is 2. Here the row number is 1 and column number is 1. What is the reverse of A11? Reverse of A11 remains A11, and that also is 2. Right? So A I comma jth element is equal to j comma ith element. Acha, what about this one? 4. What is that? So that is the first row and second column, A12, which is equal to 4. Now, what is the reverse of A12? Reverse of A12 is A21. What is A21? A21 is this. Second row, first column. What is that? 4. So therefore, we can say that A12 is equal to A21.
that is I comma jth element is equal to j comma ith element, right? Let's look at the last one. What is this? 5. What is 5? A22, A22, right? Second column, second row, second column. And what is the reverse of A22? Reverse of A22 remains A22, which is again 5. So for every element, if you check what is happening over here, for every element, if you reverse the order of the number of column and the rows for that particular element, you again get the same element. Like A12 and A21 are same, A11 and A11 are same, A22 and A22 are same, A21 and A12 are same. So that means this is a symmetric matrix. Again, this is this and this. These two examples are also of symmetric matrix. You can check. You can try and check. Right? Acha, how to find out easily whether a given matrix is symmetric or not? The necessary and sufficient conditions for matrix A to be symmetric is that A dash is equal to A. A dash means A transpose. If A transpose is equal to A, if transpose of any matrix gives you the same matrix, then it is symmetric. Then it is symmetric. Remember this. This is very, very important. ओके अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और मुझे सेम मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ट्रांसपोज समझ में आया ना? ट्रांसपोज याद है? ट्रांसपोज की थियरम्स और लॉज याद रख लेना. ट्रांसपोज क्या है वो याद रखना. अभी सब एक्चुअली अभी तक बेसिक था चैप्टर काफी, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है. क्वेश्चंस भी और थोड़े एडवांस हो जाएंगे, बट इजी है. अगर तुम मेरे से पूछो, ये चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर, ये और डिटरमिनेंट्स दोनों. ठीक है, अभी तो थोड़ा ही तो एल्जेब्रा है, बाकी क्या है? पूरा का पूरा कैलकुलस भरा हुआ है. ठीक है, सो कुछ नहीं कर सकते. जितना एल्जेब्रा है एंजॉय कर लो. जो एक बार कैलकुलस स्टार्ट हो गया तो फिर कैलकुलस ही कैलकुलस है, तुम बोर हो जाओगे कैलकुलस करते करते. तो जब तक एल्जेब्रा है उसको एंजॉय कर लो, याद रख लो जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारे इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है. कैलकुलस में तो चैलेंजेस बढ़ जाएगी तुम्हारी, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा ना, मेथड्स भी है सारी, कितने सारे टॉपिक्स है. करेक्ट, लेट्स गो अहेड. अच्छा, यहाँ पे प्रूफ दिया है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद होता है तो वो सिमेट्रिकल है. ठीक है, तो ये प्रूफ एक बार देख लेना, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड इट आउट एंड यू विल अंडरस्टैंड. मैं आगे बढ़ रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने के लिए. अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स. अच्छा, प्रूफ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, देख लेना इसको. अच्छा, हमने पढ़ा पहले ट्रांसपोज क्या होता है, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और अब स्क्यू सिमेट्रिक. Matrix Aij is said to be skew symmetric if I, jth element gives negative of its j, ith element. अगर I, jth एलिमेंट का नेगेटिव j, ith एलिमेंट है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं. बहुत सिंपल है, इसको अगर तुम देखोगे ना तो स्क्यू सिमेट्रिक्स ऐसा देखने से ही समझ में आ जाएगा. उसका तरीका क्या है वो भी बताता हूँ, देखने से कैसे समझ में आएगा मैं बताता हूँ. ठीक है, सबसे पहले तो अगर तुम ये वाले एलिमेंट को देखो, ये कौन सा एलिमेंट है? इसका i, j क्या है? i, j है इसका 1, 2. अच्छा, इसका i, j क्या है? 2, 1. और ये दोनों देखो एक दूसरे के नेगेटिव है. इसका i, j क्या है? 3, 3. 3, नहीं सॉरी 1, 3. और इसका i, j क्या है? 3, 1. दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है. इसका i, j क्या है? 2, 3. और इसका 3, 2. दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है. राइट, इसका i, j क्या है? 1, 1. 2, 2. 3, 3. अच्छा, इसका 0 का नेगेटिव क्या होता है? 0 ही रहता है. ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मोस्टली ऐसा होता है कि जो लीडिंग डायगोनल है वो 0 होता है, लीडिंग डायगोनल. क्योंकि अगर मेरे पास A11 कोई नंबर हुआ तो उसका नेगेटिव, उसका ऑपोजिट पहले क्या होगा? A11 ही रहेगा. और A11 मतलब उसका ऑपोजिट मुझे -2 देना चाहिए. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही एलिमेंट किसी एक मैट्रिक्स का पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, ये पॉसिबल ही नहीं.
इसलिए यहाँ पे 0 ही होगा मोस्टली, बट हम लोग आगे कंफर्म करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अगर तुमने उसका ट्रांसपोज ढूंढा उस मैट्रिक्स का, और अगर वो ट्रांसपोज है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, देन द गिवन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये इसका प्रूफ दिया है यहाँ पे, एक बार रीड कर सकते हो आप लोग। चलो आगे जाते हैं, कुछ थियरम्स दिए हैं। पहली थियरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज। विथ रियल एंट्रीज मतलब उनके जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं है। ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो और ए प्लस ए डैश वो मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज के साथ ऐड करो तो तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और वो मैट्रिक्स में से अपने उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए ट्रू है। इसको वो लोग ने बहुत अच्छे से प्रूव किया है। वो लोग ने एक मैट्रिक्स मान लिया है बी। बी क्या है? ए प्लस ए डैश, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम। अब दोनों साइड वो लोग ने उसका ट्रांसपोज ले लिया, सो बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश द होल डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस ए डैश द होल डैश, ए डैश प्लस ए डैश द होल डैश हो जाएगा ए, राइट। अब वापस मुझे क्या मिला देखो, वापस मुझे मिला ए डैश प्लस ए डैश प्लस ए मिला मुझे ए प्लस ए डैश, मतलब बी डैश इज इक्वल टू बी है। बी डैश इज इक्वल टू बी जब होता है, बी डैश इज इक्वल टू बी जब होता है, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस, आई एम सॉरी, बी डैश इज इक्वल टू बी। बी डैश इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब यह है कि जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद मैट्रिक्स जैसा ही हो तो मतलब ये बी क्या है? सिमेट्रिक है। मतलब ए प्लस ए डैश भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में उसका ही ट्रांसपोज ऐड करोगे तो तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स में खुद का ही ट्रांसपोज ऐड करोगे तो तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ये बात याद रखना। और किसी भी मैट्रिक्स में से खुद का ही ट्रांसपोज अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, ये सेकंड वाला प्रूफ है, अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज रीड कर लो इसको। याद रखना है, थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसको अप्लाई करने वाले हैं। सेकंड थियरम देखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही अच्छा थियरम है ये। समझो, सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश क्या होगा? सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। अगर इसको ओपन करोगे ना तो तुम्हें ए ही मिलेगा, क्योंकि हाफ ऑफ ए डैश माइनस हाफ ऑफ ए डैश कट जाएगा और हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसको तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है तो तुम सीधा सीधा ये लिख दो, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो ये लिख दो, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। So any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, प्लीज नोट कर लो ये सब वीडियो पॉज करके। अच्छा, और भी कुछ मेट्राइसिस है जो यहाँ पे वो लोग ने बताए हैं। अभी ये सब याद करना ना थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्ट है, बट देन जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, इट बिकम्स ईजियर एंड ईजियर, राइट, बिकॉज वी कम अक्रॉस सर्टन काइंड्स ऑफ मेट्राइसिस मोर ऑफन, और फिर ये लर्न हो जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मैट्रिक्स ए by replacing the elements by their conjugates is said to be conjugate matrix and it is denoted by a bar। मतलब अगर किसी
मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट से तुमने उसको रिप्लेस करके नया मैट्रिक्स बनाया तो उसको कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या है पहले ये समझो। तो सपोज तुम्हारे पास एक नंबर है, लेट्स से 2 + √3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - √3। सपोज एक नंबर है 2 - 3i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + 3i। ठीक है। सो मैंने अगर मेरे मेट्राइसिस मेरे गिवन मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट है तो उसके कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में मुझे ये वाला एलिमेंट लिखना पड़ेगा, मतलब मुझे सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट लिखना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे सर अगर ये होल नंबर हुआ तो होल नंबर का कोई कॉन्जुगेट नहीं होता है। तो जनरली कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या तो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो फिर कॉम्प्लेक्स इर्रेशनल नंबर्स, कंपाउंड इर्रेशनल नंबर्स के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज द सेम एज ए। मतलब अगर मैं ए बार या कॉन्जुगेट को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे सेम मैट्रिक्स मिलता है। फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ ए। अब ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैंने जनरली देखे नहीं है, तो तुम ये दोनों को नोट नहीं करोगे तो चलेगा। हाँ, लेकिन उसके बाद वाला मैंने देखा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। याद रखना नाम ऑर्थोगोनल इफ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए डैश इज इक्वल टू आई। मतलब तुम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब बोल सकते हो? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ तुम उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हें वही आंसर मिलेगा जब तुम उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसके साथ मल्टीप्लाई करो और वो दोनों के प्रोडक्ट इक्वल होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। जब ये केस वेरीफाई होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल। उसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स भी ये हर्मिशियन वाले से रिलेटेड है। तो एक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है तो उसको यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, बट ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं। निल पोटेंट मैट्रिक्स ये वाला है। A square matrix is said to be nilpotent if there exists a positive integer m such that a raised to m is equal to o। ओ क्या है? नल मैट्रिक्स है। याद है ओ क्या है? नल मैट्रिक्स है। अच्छा, नल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हमने एक पावर पॉजिटिव पावर m से उसको रेस कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर m से रेस कर दिया, तो हमें क्या मिलता है? नल मैट्रिक्स मिलता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग निल पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस a raised to m is equal to o is said to be index of the nilpotent matrix। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कहीं आएगा तो हम लोग देखेंगे, याद रखना है इसको। ठीक है। आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट पढ़ा, अभी आइडेम पोटेंट। देखो हमने कौन से इंपॉर्टेंट वाले इसमें पढ़े? एक तो कॉन्जुगेट वाला इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल इंपॉर्टेंट है, निल पोटेंट इंपॉर्टेंट है, आइडेम पोटेंट। A square matrix A is said to be idempotent if A square is equal to A। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर वो खुद होता है तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। फिर है इनवॉल्यूटरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। मतलब अगर उसको स्क्वायर करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तुम्हें याद है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? अगर मैं लिखता हूं आई 2/2 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लीडिंग डायगोनल 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्क्वायर करके मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स को। उसके बाद है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स भी नहीं है तुम्हें, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार याद कर लेते हैं। हमने इस पार्ट में पढ़ा है सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ट्रांसपोज मिल जाएगा। इसकी थियरम्स पढ़ी है। एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो खुद होता है। दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज उन दोनों के ट्रांसपोज के सम जितना होता है। एक स्केलर और मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को ट्रांसपोज करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू स्केलर इनटू ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है। रिवर्सल लॉ में ए बी द होल ट्रांसपोज विल गिव यू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज।
उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा हमने, किसी मैट्रिक्स का i कॉमा जेथ एलिमेंट अगर उसके j कॉमा ith एलिमेंट से इक्वल है तो सिमेट्रिक है। चेक कैसे करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और हमें वापस वही मैट्रिक्स मिलता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके हमें उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मिलता है, मतलब i कॉमा जेथ एलिमेंट इज नेगेटिव ऑफ j कॉमा ith एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो तो उसके लिए a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फिर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को तुम हाफ ब्रैकेट a प्लस ए डैश प्लस हाफ ब्रैकेट a माइनस ए डैश मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में कन्वर्ट कर सकते हो। और हमने टाइप्स पढ़ी कुछ मैट्रिसेस की, कॉन्जुगेट, ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, राइट। लेट्स चेक सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स। अभी इसमें भी कुछ इजी वाले रहेंगे तो हम लोग वीडियो पॉज करा के मैं तुमसे ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। हमको फटाफट खत्म करना है, फिजिक्स अभी तक शुरू नहीं किया है, टेंशन आ रहा है मेरे को, अभी फिजिक्स फटाफट शुरू करना है, ठीक है। सो हम लोग स्लो बिल्कुल रहेंगे लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ये मुझे चाहिए। स्कूल में तो भगाते हैं वो लोग कैसे भी करके, अक्टूबर तक खत्म करना चाहते हैं सब कुछ, बट वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेरा सिलेबस जिस स्पीड से मैं जाऊंगा मुझे तो टाइम लगेगा, मुझे एटलीस्ट पूरा दिसंबर तक टाइम चाहिए। भले तुम्हारी स्कूल में नवंबर में फर्स्ट प्रीलिम आ जाता है, लेकिन हम लोग को कोई रेस नहीं लगानी, ठीक है। तुम आराम से स्कूल की प्रीलिम्स दे सकते हो। आई एम गोइंग टू टेक टाइम टिल दिसंबर, फिनिश ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल टेस्ट के साथ। फिर दिसंबर में जैसे ही सिलेबस अपना खत्म हो जाता है तुम सेकेंड प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाओ, राइट। और इस साल पता नहीं कोरोना की वजह से अगर प्रीलिम्स या सब कुछ डिले होता है कि भी, बट मैं तुम्हारी स्कूल्स को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। वो लोग ऑनलाइन सब फटाफट फटाफट खत्म कर देंगे और उनकी एग्जाम टाइम पे ही रखेंगे वो। सो बहुत सारी स्कूल्स है ऐसी। सो वी आर नॉट मच वरीड अबाउट दैट, वी आर वरीड अबाउट कि जो हम पढ़ रहे हैं हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारी प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अभी तक जो भी पढ़ा है, जितने भी असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं, मैंने तुम्हें पूरी हेल्प की है डाउट सॉल्विंग के लिए, प्रैक्टिस मैंने दी है तुम्हें। अभी हमको टेस्ट लेनी है, शुरू करनी, ठीक है। तो फटाफट सिलेबस खत्म करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। चलो, मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है और बोला है कि ये सिमेट्रिक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ए डैश किससे इक्वल होगा, ए से, ठीक है। चलो ए डैश ढूंढ लेते हैं। ए डैश क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए लिखते हैं। चलो 0 3 3a 2b 1 3 और 3a, सॉरी 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 सॉरी, इसमें मिस्टेक्स होने के बहुत चांस होता है, बहुत केयरफुली करना है। -2 3 -1, राइट। ट्रांसपोज कर दिया, सारी रिस्पेक्टिव रोज को रिस्पेक्टिव कॉलम्स बना दिया, या रिस्पेक्टिव कॉलम्स को रिस्पेक्टिव रोज। 0 2b -2 3 1 3 3a 3 -1। अच्छा, ये अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल होगा, a डैश इज इक्वल टू ए। क्यों a डैश इज इक्वल टू ए, सिंस a इज सिमेट्रिक, क्योंकि a सिमेट्रिक है, ठीक है। सो 0 2b -2 3 1 3, ये तुम्हारा ओरिजिनल है मैट्रिक्स A 3 -1, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसको रिस्पेक्टिव हम लोग इक्वेट करते जाएंगे और A और B ढूंढेंगे। अभी कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इसको सिर्फ 3 को इस 2b के साथ इक्वेट करो, क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2b, सो b इज इक्वल टू 3/2, मिल गया b। अच्छा, अभी इसको इसके साथ इक्वेट करो, 3a इज इक्वल टू -2, सो 3a इज इक्वल टू -2, सो a इज इक्वल टू -2/3, हो गया, a और b मिल गया। 1 मार्क का क्वेश्चन। बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तुम्हें प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए तो ही ये सॉल्व कर सकते, प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो कैसे इतना इजी भी नहीं कर पाओगे। सो मेमोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे 12th में, ठीक है। चलो डन, नेक्स्ट। इफ द मैट्रिक्स, अगर तुम्हें लगता है क्वेश्चन पढ़ के ही मेरे साथ साथ कि तुम इजीली इसको क्रैक कर लोगे, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व कर लो, ठीक है।
अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। स्क्यू सिमेट्रिक से सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि ए डैश विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखो और फिर यही गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लिखो। तुम्हें पता है ना नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? जब तुम एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की साइन ऑपोजिट कर देते हो, चेंज कर देते हो, तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। चलो इसको मैं लिख के बता देता हूँ तुम्हें एक बार, फिर तुम्हारे लिए इजी होगा, फिर तुम्हें इसको सॉल्व करोगे। ए डैश क्या होगा? 0 2 बी, ये फर्स्ट रो हो गई। ए 0 1, ये सेकेंड रो हो गई। और -3 -1 0, ये थर्ड रो होगी। और माइनस ए क्या हो गया? डायरेक्टली लिखता हूँ माइनस ए। 0 का नेगेटिव 0, ए का नेगेटिव -a, -3 का नेगेटिव 3। वैसे ही यहाँ पे आएगा -2 0 1 -b -1 0। 0 का नेगेटिव 0 ही रहता है। ठीक है, एक ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है, बहुत ईजी है। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, -a इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू -2। और b की वैल्यू क्या हो गई? ये b यहाँ पे, ये b यहाँ पे, b इज इक्वल टू 3। a -2 b 3, a -2 b 3, करेक्ट। बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, if a is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, find alpha satisfying that alpha lies between 0 and pi by 2, and when a and the sum of a and a transpose is √2 i2। अच्छा, इसका मतलब क्या है? a प्लस a ट्रांसपोज। a क्या है? a है तुम्हारा cos alpha sin alpha माइनस sin alpha और कॉस अल्फा। ठीक है, ये है एक मैट्रिक्स, प्लस ए ट्रांसपोज लिखूंगा मैं यहाँ पे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, एंड कॉस अल्फा। ये दोनों का जो सम है वो है √2 i2। √2 ब्रैकेट i2 क्या है? 1 0 0 1, मैंने पहले ही बताया था i2 क्या है। ठीक है, अब ये √2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करके सॉल्व करके √2 की अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो ये आपको करना है, ये फटाफट वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो जैसे मैंने बोला था, आगे सॉल्व किया है वो लोगों ने। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, राइट। सॉल्व करके ये लोग को दो ये वैल्यूज मिलती है। सो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी π/4, 45 डिग्री। बहुत इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, ये एक मैट्रिक्स है और ये इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से इक्वल है। इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना पड़ेगा तुम्हें, सेकेंड वाले मैट्रिक्स को। ठीक है, फिर इस दोनों को इक्वेट करो और ये ढूंढो। बहुत इजी। पॉज करो, सॉल्व करो। डन। चलो ट्रांसपोज किया, सॉल्व किया, आंसर आया A4, राइट। नेक्स्ट। अच्छा, क्या है ये? अगर दो मैट्रिक्स दिया है A और B, देन वेरीफाई दैट A डैश डैश, मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A है। तो ये वेरीफाई करना है सिर्फ LHS RHS लेके। पहले A को ट्रांसपोज करो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, तुम्हें यही मिलेगा। ये सब वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, LHS RHS वाले क्वेश्चन है। पहले LHS ले लो, सॉल्व करो, तुम्हें RHS मिलेगा। LHS ले लो, सॉल्व करो, तुम्हें RHS। अच्छा, कभी कभी RHS डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो RHS भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, LHS को सॉल्व करो, RHS को सॉल्व करो, दोनों इक्वेट हो जाएंगे। LHS को सॉल्व करो, RHS को सॉल्व करो, दोनों इक्वेट हो जाएंगे। कैन यू डू दैट? पॉज द वीडियो एंड ट्राई। जब मैं बोलता हूँ पॉज द वीडियो एंड ट्राई, तो एक्चुअली ट्राई करो, वीडियो देखते मत बैठो। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं ये लोग ने कर दिया है। देखो फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला। ओके, शो दैट a plus a dash is symmetric when a is equal to 2 4 5 6। अच्छा,
तो चलो a प्लस ए डैश निकालते हैं। तो a प्लस ए डैश, सॉरी आई लिख दिया मैंने, a प्लस ए डैश क्या होगा? a होगा 2 4 5 6 प्लस ए डैश होगा 2 4 5 6, दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 4 9 9 12। ये तो है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे है? अच्छा, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं मैट्रिक्स बी। ठीक है, लेट ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अभी सिमेट्रिक प्रूव कैसे करते हैं? सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद होता है, इफ बी डैश इज इक्वल टू बी, देन बी इज सिमेट्रिक। ये तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। तुम लोग बी डैश निकालोगे और बी डैश की वैल्यू अगर बी से इक्वल आती है तो बी सिमेट्रिक। और बी क्या है? बी है ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व कर लो बाकी को। डन। चलो आगे जाते हैं, देख लेते हैं क्या है। ए प्लस ए डैश निकाला है वो लोग ने, राइट। चलो, शो दैट ए माइनस ए डैश इज क्यू सिमेट्रिक। सेम चीज है जो पहले हमने की थी। पहले ए डैश निकालो, फिर ए माइनस ए डैश निकालो, फिर अगर इफ a minus a dash, if a minus a dash इसका ट्रांसपोज is negative of a minus a dash, then a minus a dash is skew symmetric। ठीक है, ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें ए डैश ढूंढना पड़ेगा, फिर ए माइनस ए डैश ढूंढना पड़ेगा, फिर ए माइनस ए डैश को ट्रांसपोज करना पड़ेगा उसके आंसर को, और फिर नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए डैश ढूंढना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। आई एम श्योर यू कैन डू दिस। पॉज करो, ट्राई करो। डन, लेट्स सी। राइट, वो लोग ने पहले ए माइनस ए डैश ढूंढा है, फिर ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज ढूंढा है, और फिर नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए डैश ढूंढना है। तो ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए डैश से इक्वल है, इसलिए वो स्क्यू सिमेट्रिक। चलो, सिर्फ वेरिफिकेशन करना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए डैश प्लस बी डैश होता है। ए और बी तुम्हारे सामने है। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या ये ए प्लस बी ऐड कर सकते हैं क्या? अच्छा, यहाँ पे एक कैच देखो, ए डैश दिया है, पहले तुम ए डैश को किस में कन्वर्ट करोगे? ए में, और उसके बाद तुम ए को बी के साथ ऐड करोगे। ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज ढूंढोगे। अच्छा, फिर बी दिया है, पहले तुम बी डैश को कन्वर्ट करोगे, बी को कन्वर्ट करोगे बी डैश में, फिर ए डैश और बी डैश को ऐड करोगे, तो तुम्हें आरएचएस मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आराम से सोच समझ के करना है इसको। पॉज कर लो, ट्राई कर लो। ये सारे सम तुम्हें ही करना है, ये मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। सारे सम इतना इजी है ये। कुछ डिफिकल्ट है, अभी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, उसमें मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन, उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। बट ये मैथ्स में ये तो बहुत इजी चैप्टर है यार, वी कैन फिनिश इट फास्ट। कम ऑन, डन। चलो देख लेते हैं। दो लोग ने पहले ए प्लस बी निकाला है, फिर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला है, फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाला है, और दोनों सेम आता है। वेरिफिकेशन हो गया। ए और बी दिया है, तो तुम्हें वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी डैश इंटू ए डैश होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये तुम वेरीफाई करोगे पूरा, कुछ भी हिंट भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इसमें कुछ देने लायक है नहीं। तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, सब आता है, आराम से करोगे। पॉज करो, ट्राई करो। डन, लेट्स चेक द आंसर। इससे वीडियो में फटाफट होता है काम,
अगर मैं ये बोर्ड पे लिखता बैठूंगा एक एक चीज और फिर इरेज करूंगा, फिर नया क्वेश्चन, ये सब नहीं है, टाइम नहीं है अपने पास। फटाफट अपने को काम खत्म करके आगे बढ़ना है, सिलेबस आगे बढ़ाना है। समझ रहे हो? ए डैश बी डैश निकल गया, ए बी निकाला, फिर ए बी का ट्रांसपोज निकाला। ए बी क्या है? ए मल्टीप्लाइड बाई बी, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, और फिर बी डैश मल्टीप्लाई बाई ए डैश किया, तो हमें जो आंसर मिला वो सेम है, वेरीफाई हो जाता है रिजल्ट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना, ध्यान रखना बिल्कुल। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है? 1/3। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल है। और प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा? 3/3, है ना? 3/3 देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भूलना नहीं। वैसे तुमने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की तो भूलोगे तो नहीं इतना जल्दी। If A and B are symmetric matrices of the same order, then show that AB is symmetric if and only if AB is equal to B. That is A and B commute. इसका मतलब है अगर दो सिमेट्रिक मेट्राइसेस है और दोनों का ऑर्डर भी सेम, तो ए बी मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई बी भी सिमेट्रिक हो, अगर ए बी और बी ए इक्वल हुए तो ही। कैसे इसको शो करेंगे? ये इंटरेस्टिंग है, ये मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, तो देखना पड़ेगा उन्होंने कैसे किया। अच्छा, अब वो लोगों ने कंसिडर किया है कि ए बी सिमेट्रिक है। सबसे पहले ए बी को सिमेट्रिक कंसिडर कर दिया। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो मतलब ए बी का जो ट्रांसपोज है वो ए बी जितना ही होगा। अच्छा, ए बी का ट्रांसपोज किससे इक्वल होता है? बी डैश ए डैश, वो भी ए बी से इक्वल होगा, रिवर्सल लॉस। ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है बी ए विल बी इक्वल टू ए बी, और रीजन क्या दिया है पता है? ए इज सिमेट्रिक, सिंस ए इज सिमेट्रिक ए डैश ए से इक्वल होगा। सिमिलरली बी भी सिमेट्रिक है तो बी डैश बी से इक्वल होगा। करेक्ट है। वो लोग बी डैश को बी बना सकते हैं और ए डैश को ए बना सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों आपस में सिमेट्रिक है, आपस में नहीं, ए और बी दोनों इंडिविजुअली सिमेट्रिक है। तो बी डैश बी बन जाएगा, ए डैश ए बन जाएगा। इसका मतलब है कि बी ए बी से इक्वल है, मतलब ए और बी कम्यूटेटिव है मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर ए बी सिमेट्रिक हुआ तो ही ए और बी कम्यूटेटिव होता है। ये प्रूव किया है वो लोग ने, बहुत अच्छे से प्रूव किया है। इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना प्लीज। अच्छा, इसका उल्टा भी वो लोग ने प्रूव किया है। कन्वर्सली ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश होता है, रिवर्सल लॉ है। रिवर्सल लॉ ही बोलता है ना इसको? नहीं, कौन सा लॉ बोलते हैं इसको? एक थियरम है आई थिंक। अच्छा, बी डैश ए डैश बी ए से इक्वल है, और बी ए किससे इक्वल है? ए बी से। सो ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी सिमेट्रिक है। ठीक है। तो ए बी अगर सिमेट्रिक है तो बी इंटू ए इंटू बी से इक्वल होगा। और अगर हमने ये मान लिया कि ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश से इक्वल है तो भी ए बी सिमेट्रिक होता है, मतलब उल्टा भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको। ये कन्वर्सली लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। फर्स्ट वाला लिखा तो इनफ है। चलो, ये क्या है? लेट ए बी अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो दैट हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ ऑफ ए माइनस, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है। Also prove that any square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix. ये प्रूव करना है तुम्हें, वो जो थियरम पढ़ी थी उसका प्रूफ मांगा है वो लोगों ने। लेट्स सी कैसे करते हैं। पहले क्या किया है? ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है। अगर एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज वो खुद होगा। ठीक है। अब वो लोग ने सॉल्व कर लिया है किसको? देखो, पहले वो लोगों ने लिया है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और उसका ट्रांसपोज निकाला है। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज क्या होगा? हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश द ट्रांसपोज ऑफ द सेक ब्रैकेट ओनली। ये पूरे होल ट्रांसपोज को सिर्फ छोटे ब्रैकेट का ट्रांसपोज बना दिया। अब ट्रांसपोज को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज ए डैश प्लस ए, दैट इज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश. Hence half of a plus a dash is symmetric matrix. Half of a plus a dash is symmetric matrix. मतलब क्या मिला हमें, समझा? मतलब मैं अगर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश का पूरा ट्रांसपोज लेता हूं तो मुझे वो वापस सेम मैट्रिक्स मिलता है. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, वो प्रूव हो गया. बट उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ा था कि ए एक्स स्क्वेयर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए डैश और ए इक्वल है, तभी हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि जब तुम्हारे पास ए डैश आएगा तो तुम्हें उसको ए लिखने के लिए इजी होना चाहिए, और ए डबल डैश का तो ए हो ही जाता है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ए को हमने ए डैश लिख दिया, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. वैसे ही ये सेकंड वाले को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव किया है. पहले ये पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है, फिर ये ट्रांसपोज को ब्रैकेट का ट्रांसपोज बनाया है, फिर ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को ट्रांसपोज ले लिया है, फिर ये ए डैश और ए में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन हम ए डैश को ए बना सकते हैं और ए को ए डैश बना सकते हैं, बिकॉज ए डैश से इक्वल है. क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी वजह से. ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये माइनस की साइन भी आ गई, मतलब हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश द होल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश. मतलब ए हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अच्छा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो. पहले दोनों को ऐड नहीं किया, पहले वो लोग ने ए को कुछ अलग तरीके से लिखा है. ए को वो लोग ने लिखा है हाफ ऑफ 2a. हाफ ऑफ 2a भी यही होता है. अच्छा, फिर इधर वो लोग ने 2a को a प्लस ए लिखा है और a डैश और माइनस ए डैश भी अंदर डाल दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, फिर इसको ओपन करके लिख दिया. So A is equal to P plus Q. Thus A has been expressed as the sum of P plus Q matrices, but P is symmetric and Q is skew symmetric, जो हमने पहले ही प्रूव कर दिया है. Hence any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. प्लीज इसको नोट कर लेना एक बार, वीडियो पॉज करके. ऊपर वाले को नोट करना है, यहाँ पे कहीं भी. चलो पॉज करो, नोट करो. बहुत अच्छे से प्रूव किया है ये. पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, इसको भी नोट करो. और ये फाइनल स्टेटमेंट. ठीक है, इसमें यूनिकनेस के लिए अलग से वो लोग ने प्रूव किया है. लेट्स सी के क्या है यूनिकनेस के लिए अलग से क्यों किया है. इफ पॉसिबल लेट ए हैव 2 रिप्रेजेंटेशंस. ठीक है, ए को हम लोग p प्लस क्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और r प्लस s भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p और r सिमेट्रिक है. अच्छा, सो p डैश p से इक्वल होगा और r डैश r से इक्वल होगा, और q और s को हमने स्क्यू सिमेट्रिक मान लिया है, तो q डैश माइनस क्यू होगा और s डैश माइनस s होगा. तो हम लोग अगर a का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो p डैश प्लस क्यू डैश बन जाएगा, और a डैश हम लोग r डैश प्लस s डैश भी लिख सकते हैं, राइट. बट a डैश क्या है? p माइनस क्यू है, और a डैश r माइनस s भी है. एक मिनट, जो हमने यूनिकनेस में लिखा है. अच्छा, ये क्यों p माइनस क्यू है मैं तुम्हें बताता हूँ. देखो, p डैश p से इक्वल है. ठीक है, मैं तुम्हें हाईलाइट करके बताता हूँ. p डैश p से इक्वल है. क्यों? p डैश p से हम इक्वल है, हमने पहले ही प्रूव कर दिया. क्यों? क्योंकि p और r सिमेट्रिक है और q और s क्यू सिमेट्रिक है. सो p डैश p से इक्वल है, r डैश r से इक्वल है, q डैश माइनस q से इक्वल है और s डैश माइनस s से इक्वल है. मतलब मैंने a डैश और a डैश की 2 वैल्यू ढूंढ ली. अब मैंने a और a डैश को ऐड किया है, मुझे 2p मिला है,
और 2r मिला है। फिर a माइनस ए डैश किया है, मुझे 2q और 2s मिला है। ठीक है, अब क्या होता है इसको देखो, 2p और 2r इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब p और r एक ही है, और 2q और 2s इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब s और q एक ही है। तो इधर स्टेटमेंट लिखा है वो लोग ने, दस द सेकेंड रिप्रेजेंटेशन a is equal to r plus s becomes a is equal to p plus q, which establish the uniqueness. Hence, any square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. प्लीज इसको नोट कर लो, यूनिकनेस का अलग से वो लोग ने बताया है. The steps are very important in for your boards. Note this as well. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. एक्सप्रेस 3, 4, -1 एंड 5 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. यस. कैसे इसको कर सकते हैं रिप्रेजेंट? सो ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश. दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम ए मान लेते हैं. फिर हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? ए डैश. और ए डैश की वैल्यू हमें यहाँ पे और यहाँ पे डालनी पड़ेगी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो ए स्प्लिट होके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. प्लीज ट्राई दिस योरसेल्फ. ए डैश ढूंढ के, राइट. लेट्स चेक द आंसर. ए डैश ढूंढा है पहले, फिर हाफ ए प्लस ए डैश ढूंढा है, फिर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश ढूंढा है. ठीक है, जो सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक कब होता है पता है? जो नॉन लीडिंग डायगोनल है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन लीडिंग डायगोनल जब सेम होता है तो सिमेट्रिक ही होता है. स्क्यू सिमेट्रिक में ये जो नॉन लीडिंग डायगोनल है वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, और लीडिंग डायगोनल या फिर दूसरे एलिमेंट सारे जीरो हो जाते हैं. और ये मैंने ए को रिप्रेजेंट किया, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Next, express the matrix A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix where A is given to you. अब यहाँ पे चैलेंज क्या है? ये तो बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन. चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि तुम्हारा जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, इट इज ऑफ द ऑर्डर 3/3. ये चैलेंज है. तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं. 3/3 मैट्रिक्स है ये. तो इस पहले तो इसका ए डैश निकालना पड़ेगा, फिर ए डैश प्लस ए ढूंढना पड़ेगा, फिर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा. वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कैसे पता चलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जो उसका नॉन लीडिंग डायगोनल होगा वो सेम होंगे, सेम एलिमेंट्स. राइट, वही था ना पहले, वही देखा था. देखते हैं आगे क्या होगा. अच्छा, फिर स्क्यू सिमेट्रिक्स कैसे ढूंढेंगे? तो ए माइनस ए डैश ढूंढेंगे हम लोग, और फिर उसका हाफ कर देंगे, तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और उसमें क्या होगा? लीडिंग डायगोनल एक दूसरे के, सॉरी नॉन लीडिंग डायगोनल एक दूसरे, सॉरी लीडिंग डायगोनल जीरो होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होंगे. चेक करते हैं. चलो तुम लोग पहले पॉज कर लो, बाद में पॉज करके सॉल्व कर लो, बाद में चेक करेंगे. किया सॉल्व? चलो देखते हैं. पहले ए था, ए डैश निकाला, फिर ए प्लस ए डैश निकाला, ए प्लस ए डैश का हाफ निकाला. ए प्लस ए डैश का हाफ देखो कैसा दिखता है. इसमें जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है, एक्सेप्ट ऑफ द लीडिंग डायगोनल, एक्सेप्ट फॉर द लीडिंग डायगोनल, जो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है वो सेम है. मैं बताऊं तुम्हें हाईलाइट करके कौन से रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स. पहले तुम ये नॉन लीडिंग डायगोनल को भूल जाओ यार. पहले तुम इसको भूल जाओ, ठीक है. इसको मत देखो, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, मतलब ये कुछ भी हो सकता है. बट बाकी सारे एलिमेंट्स को देखो. ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, और ये इससे इक्वल है. ठीक है, तो मतलब सिमेट्रिक है ये.
अच्छा, फिर a माइनस ए डैश ढूंढा, फिर हाफ ऑफ a माइनस ए डैश ढूंढा। अच्छा, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश क्या है? लीडिंग डायगोनल पूरा जीरो है और बाकी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, नेगेटिव। माइनस 5/2 5/2, 3/2 माइनस 3/2 एंड माइनस 3/3। करेक्ट। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मैंने हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स को ये दोनों के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। राइट, डन हो गया। ये पार्ट भी खत्म हो गया, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट, तो आई होप तुम लोगों ने सारे सम सॉल्व किए मेरे साथ। अभी मैं एक्सरसाइज तुमको भेजूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे, मैट्रिक्स खत्म। फिर हम लोग शुरू करेंगे तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स। फिर तुम्हारा एल्जेब्रा पार्ट खत्म हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म, रिलेशन फंक्शन खत्म। राइट, फिर हम लोग शुरू करेंगे तुम्हारा कैलकुलस। कैलकुलस शुरू करेंगे। अच्छा, कुछ स्कूल्स में प्रोबेबिलिटी सिखा दिया है, वेक्टर सिखा देते हैं पहले ही। मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये ना करें यार, बिकॉज कैलकुलस इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, और हमको कोशिश करना चाहिए कि इंटीग्रल्स तक जितना जल्दी हो जाए ख़त्म करें। राइट, पहली बुक एक बार ख़त्म हो जाएगी ना, फिर तुम्हारे पे टेंशन नहीं रहेगा। तो कैलकुलस पे फोकस करना ज़रूरी है, इसलिए मैं वो पीछे वाले प्रोबेबिलिटी और वेक्टर चैप्टर अभी नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, मुझे साथ साथ में मैथ्स के साथ में फिजिक्स भी शुरू करना है, अभी हम उस पर फोकस करेंगे। एक बार मैट्रिक्स खत्म हो जाए पूरा, फिर फिजिक्स भी साथ में शुरू कर देंगे। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।